اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اپنا آن لائن کلاسز بہت اچھے سے لے رہے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بہت سمپل ہے اور بہت مزے کا بھی ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ ایڈجیکٹیوز۔ واٹ آر ایڈجیکٹیوز؟ Adjectives are words that describe nouns. Adjective answers such question as what kind, which one, how many. اس قسم کے سوالات کے جواب جو ہے نا، مطلب ہے کہ ہمیں ایڈجیکٹیوز کے ذریعے ملتے ہیں، یا ایڈجیکٹیو جو ہے وہ ان قسم کے سوالوں کو جواب دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہے، کوئی ناؤن ہے یا کوئی پروناؤن ہے، تو یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کس قسم کا ہے، کون سا ہے اور تعداد میں کتنا ہے۔ یہ ہم نے اگزامپل دی ہے۔ اور ایڈجیکٹیو کین بی یوز ٹو ڈسکرائب ڈفرینٹ تھنگز، لائک وی کین سی دیٹ کلر کین بی ڈسکرائبڈ تھرو ایڈجیکٹیوز، کہ کوئی چیز ہے تو وہ کس کلر کے اندر ہے۔ اوپینین، بچے کلر کو دیکھ لو، کلر میں ریڈ، بلیو، براؤن، پرپل، یلو، بلیک، یہ سارے آ سکتے ہیں۔ اب یہ ہم ڈفرینٹ قسم کے ناؤنز اور پرو ناؤنز کے ساتھ لگاتے ہیں۔ لیٹ سپوز میرے پاس ایک لفظ ہے شرٹ، اور اس کے ساتھ میں نے کہا جی بلیو شرٹ، تو بلیو جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہو گیا اور شرٹ آلریڈی ناؤن ہے، کیونکہ بلیو ہمیں شرٹ کے متعلق بتا رہا ہے، اضافی انفارمیشن دے رہا ہے، شرٹ کی صفت بیان کر رہا ہے۔ اور بٹن، ریڈ بٹن، میرے پاس ایک لفظ آ جاتے تو ریڈ یہاں پہ ایڈجیکٹیو ہوگا اور بٹن تو آلریڈی ناؤن ہے۔ تو بیٹا اس طریقے سے کر کے جو ہے اوپینین بیان کرتے ہیں، مثلاً گڈ، پریٹی، رائٹ، رانگ، فنی، لائٹ، ہیپی۔ یہ جو لفظ ہیں یہ مختلف، اب دیکھو گڈ، یہ کسی چیز کے، دس چیئر از گڈ، ٹھیک ہے جی، تو یہ کسی چیئر کے متعلق بتا رہا ہے، ہی از اے گڈ بوائے، وہ ایک اچھا لڑکا ہے۔ پریٹی، رائٹ، رانگ وغیرہ وغیرہ، تو یہ جب چیزوں کی صفات بیان کرتے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ اوپینین کو بھی مطلب بیان کرتا ہے، سائز کو بھی بیان کرتا ہے، بگ، اسمال، لانگ، شارٹ، کس چیز کے متعلق ہو، جب کسی ناؤن یا پروناؤن کے متعلق ہو۔ ایج کو بھی بیان کرتا ہے، اولڈ، ینگ، ایج کس کی ہو، کسی ناؤن یا پروناؤن کی ہو، مثلاً این اولڈ بوائے فار اے ینگ بوائے، این اولڈ مین، ٹھیک ہے۔ شیپ کو بیان کرتا ہے، کسی شیپ اگر کسی چیز کی ہے یا کسی مطلب ہے کہ اس کی ہے، کسی بندے کی ہے۔ بہرحال ناؤن پروناؤن ہونا لازمی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بیکاز adjectives are all about the nouns and pronouns، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمارے پاس یہ شیپ ہو گیا، شیپ میں راؤنڈ، ٹرائی اینگل، ریکٹینگولر، اسکوئر، اوول، یہ جتنی شیپس ہیں، ان شیپس کو جب بھی ہم کسی ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ یوز کریں گے تو یہ شیپس جو ہیں وہ کیا ہو جائیں گی، ایڈجیکٹیو ہو جائیں گی۔ اوریجن ہے مطلب جرمن، یس، ملائیشین، جرمن۔ اب جرمن کیا ہے، ہی کیپٹ آن، یا ہی وور اے جرمن کوٹ، اس نے جرمن کوٹ پہنا ہوا ہے، یا the pen I'm using is German, it is a German cap، یہ جرمنی کی ٹوپی ہے، تو صفت لگ جاتی ہے۔ ملائیشیا، ٹھیک ہے جی، this is a Malaysian brand، ٹھیک ہے۔ تو ملیشیا جو ہے اوریجن بتاتا ہے، یہ کہ کوئی چیز ہے، کوئی ناؤن ہے، پرو ناؤن ہے، اس میں اوریجن بتاتے ہیں، اس ملک کا نام بتاتے ہیں، کس خطے سے جو ہے نا یہ منگائی گئی ہے، یا اس کی کوئی بھی نسبت کسی خطے کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ہے میٹیریل، ٹھیک ہے جی، کوئی ناؤن ہے، پرو ناؤن ہے، وہ کس چیز، کس میٹل سے بنا ہے، کس میٹیریل سے بنا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا مطلب یہ اس ڈفرینٹ کیٹیگریز میں ہو سکتا ہے۔ ڈسٹینس بھی بیان کرتا ہے، لانگ، شارٹ، فار، ٹائم، لیٹ، ارلی، ٹیمپریچر، کولڈ، وارم، ہاٹ، کول، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر کسی نام کے ساتھ یا کسی جو ہے وہ اس میں ضمیر کے ساتھ اضافی طور پہ لگ جاتی ہیں تو ان کلر، اوپینین، سائز، ایج وغیرہ کے اندر، کیٹیگریز کے اندر ہمیں آنسر ملتے ہیں۔ تو پیچھے میں بتا چکا ہوں کہ یہ ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ کوئی چیز ہے تو وہ کس قسم کی ہے، کون سی ہے اور کتنی ہے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی ٹائپس آف ایڈجیکٹیو کو دیکھ لیتے ہیں بیٹا۔ تو ہمارے پاس سب سے پہلے کیا ہے، کوالیٹیٹیو
या उसे हम डिस्क्रिप्टिव भी कहते हैं एडजेक्टिव। दूसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तीसरे पे डेमोन्स्ट्रेटिव है। नंबर 4 पे हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव है। नंबर 5 पे हमारे पास इंटेरोगेटिव है। फिर नंबर 6 पे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव है। और फिर 7 पे कंपाउंड एडजेक्टिव है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव हमारे पास क्या होता है जी? टू डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, फॉर एग्जांपल इट्स साइज, जनरल डिस्क्रिप्शन जिसे फिजिकल हो सकती है, एज, शेप, कलर, मटेरियल, ओरिजिन एंड पर्पस, इन सब को बयान करने के लिए जो है ना हम जो भी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं उन एडजेक्टिव्स को हम क्या बोलते हैं जी? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं या डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव बोलते हैं। एग्जाम्पल टॉल, एक्सीलेंट, स्लिम, यंग, ठीक है, स्क्वेयर, प्लास्टिक। द टॉल गर्ल इज़ माई क्लासमेट, ऊंची कद वाली लड़की मेरी क्लासमेट है। द स्टूडेंट अचीव्ड एक्सीलेंट रिजल्ट्स, ठीक है जी, स्टूडेंट्स ने अचीव किए क्या? रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स की नेचर क्या है? एक्सीलेंट। किस किस्म का? अब एक्सीलेंट हमें बता रहे रिजल्ट के मुतालिक, तो यहाँ पे एक्सीलेंट क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ बिकॉज इट इज टेलिंग अस अबाउट अ नाउन। ओके, अब क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव को देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हमारे पास है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ये किस चीज़ के मुतालिक बताते हैं? टू इंडिकेट द नंबर और अमाउंट ऑफ थिंग्स, किस चीज़ की अमाउंट या नंबर के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है? सम, मच, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, होल, सेवरल, ये सारी क्या है जी? क्वांटिटेटिव, जैसे कि नाम से जाहिर है क्वांटिटी बयान करने की जो है ना ये क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। शी फाउंड मैनी पेन्स अंडर द टेबल, तो उसे मिले क्या? पेन्स। पेन क्या है बेटे? नाउन है। और मैनी किस लफ्ज़ के मुतालिक है? पेन्स के मुतालिक है। जब भी किसी सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव ढूंढना हो तो बाज़ दफ़ा लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो बेटा, लफ्ज़ों के ताल्लुक़ को देखा जाता है। अगर किसी लफ्ज़ का ताल्लुक़ किसी नाउन या प्रोनाउन के साथ बन रहा है तो समझ जाओ, और वो लफ्ज़ उस नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, अच्छी या बुरी, तो समझ जाओ कि ये जो है वो क्या है? एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अगर अब यहाँ के मैनी पेन्स अंडर द टेबल, अब मैनी का ताल्लुक जो है वो पूरे सेंटेंस में लफ्ज़ पेन्स के साथ जो है ना जुड़ रहा है। और पेन अपने आप में क्या है जी? एक वो है, नाउन है। तो एनीथिंग मॉडिफाइंग अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये अच्छा, अब आंसर किस चीज़ को कर रहा है? नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक इंफॉर्मेशन तो दे रहा है। इंफॉर्मेशन देने पर तो ये एडजेक्टिव साबित हो गया, लेकिन किस किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये क्वांटिटी बता रहा है। तो इस निस्बत से इसका नाम हमने क्या रख लिया? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव रख लिया। देयर वाज नो मिल्क इन द जग, जग के अंदर वो नहीं था, दूध नहीं था। अच्छा, अब नो है, उसके साथ मिल्क है, जग भी है। नो का ताल्लुक जग के साथ बनता है? नहीं है बनता। नो का ताल्लुक मिल्क के साथ बन रहा है। मिल्क एक नाउन है। और दूध नहीं था, नो मिल्क इन द जग, जग के अंदर देयर वाज नो, जग के अंदर दूध नहीं था। अब नो जो है मान लिया, क्योंकि ये मिल्क को मॉडिफाई कर रहा है तो ये इसका एडजेक्टिव बन गया। लेकिन ये एज एन एडजेक्टिव क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? हमें मिल्क की क्वालिटी के मुतालिक बता रहा है, क्वांटिटी के मुतालिक बता रहा है। तो क्वांटिटी हमारे पास नो है, यानी कि नहीं है मिल्क, तो इस वजह से ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। देयर आर 37 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब 37 का ताल्लुक जो है स्टूडेंट के साथ बन रहा है। स्टूडेंट नाउन है। कोई चीज़ नाउन को ज़्यादा मॉडिफाई करे तो क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। 37 स्टूडेंट्स, 37 हमें स्टूडेंट्स की तादाद के मुतालिक बता रहा है, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा। इस तरीके से जब समझोगे तो आसानी से समझ आ जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, के बाद हमारे पास है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स।
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स के अंदर जो है हमारे पास क्या चीज़ है बेटा, वो है कि मतलब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स उनको बोलते हैं जब हमने इशारा करना होता है किसी चीज़ की तरफ, जब हम किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। टू पॉइंट आउट नाउन्स, नामों की तरफ जब हम इशारा करते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, दीज, दिस, दैट, दोज। दिस इज़ माई फ्रेंड दीना, ये मेरा फ्रेंड दीना है। अब देखो यहाँ पे दिस जो है वो किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, तो दिस क्या है, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है। ठीक है, फिर फर्दर उसकी जो है ना मतलब है कि क्लासिफिकेशन है कि कौन सा फ्रेंड है, दीना फ्रेंड है। तो दिस इज़ माय फ्रेंड, ये मेरा दोस्त है। तो दिस जो है ना फ्रेंड की तरफ इशारा कर रहे, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। दोज बुक्स बिलोंग टू हर, दोज का ताल्लुक बुक्स के साथ है, वो किताब है, यानी इशारा कर रहा है किताबों की तरफ। तो जैसे नाम से ज़ाहिर है डेमोन्स्ट्रेटिव, इशारा करने वाले। ठीक है जी, तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स यहाँ पे हमारे पास आया। दोज एडजेक्टिव हमारे पास क्या आया, दोज बुक्स में से दोज क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। अब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव को देखते हैं डियर स्टूडेंट। सिंपल रखो, सिंपल। इंटेरोगेटिव जब कोई सवाल पूछ रहा हो, इंटेरोगेटिव ऐसी सिफत से सवालाती सिफत हो। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स जो लफ्ज़ सवाल करने, किसी नाउन या प्रोनाउन के मुतालिक सवाल करने के लिए इस्तेमाल हों, ठीक है, तो वो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। मसलन इसकी देखो, यूज विद नाउन टू आस्क क्वेश्चन, नाउन्स के साथ इस्तेमाल होते हैं और काम क्या करते हैं, क्वेश्चन करने का, सवालात करने का। इसकी एग्जांपल क्या है, व्हाट, हुज, वेयर, व्हाई, हाउ एंड विच। हुज पेन इज दिस, अब पेन क्या है मेरे बच्चे, पेन एक जो है ना नाउन है। ठीक है, हुज पेन इज दिस, ये पेन किसका है, तो यहाँ पे जो है ना हुज क्या हुआ, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा, विच वे शैल वी गो, हम किस रास्ते जाएं। वे रास्ते को कहते हैं और एक नाउन है। अच्छा जी, विच वे, कौन सा रास्ता। अब ये क्या है, रास्ते पड़े हुए हैं, ठीक है, और उसमें से जो है ना मतलब है कि आपने पूछा है विच वे शैल वी गो, हमें कौन सा रास्ता जाना चाहिए, तो ये विच का लफ्ज़ सवालिया अंदाज इख्तियार किए हुए। ठीक है, और ऐसा कोई एडजेक्टिव जो सवालिया अंदाज इख्तियार किए हुए हो, हमारी नॉलेज के मुताबिक हम उसे क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डियर स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत कम है। पॉजेसिव एडजेक्टिव को जो है ना हम देख लेते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, पॉजेसिव एडजेक्टिव वो होता है जिसमें हम मलकियत का दावा करते हैं। यूज टू शो पोजेशन, मलकियत का। एग्जाम्पल उसकी क्या है, माई, यूअर, हिज, हर, आर, आवर, हर, आर, देयर, इट्स। ये क्या है बेटा, ये सारी जो है ना पोजेशन। मैं, माई पेन, मेरा पेन, तो मैं अपनी मलकियत का दावेदार हूँ ना। यूअर जैकेट, तुम्हारी जैकेट, तो यहाँ पे भी मलकियत नज़र आ रही है। दिस इज़ हर हैट, ये उसकी टोपी है। तो हर हैट जो है वो क्या है, नाउन है, और किसकी हैट है, हर, पोजेशन है ना, मलकियत दिखा रही है, उसकी है। ठीक है, देयर पेरेंट्स केम टू माई हाउस। अच्छा, पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, जमा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो किसके पेरेंट्स, देयर, उनके, यानी उन, ये पेरेंट्स उनकी मलकियत है ना, पोजेशन उनकी है स्क्रीन के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर। केम टू माई हाउस, घर में आए, किसके घर में, मेरे घर में आए। तो माई यहाँ पे क्या कर रहा है, हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, लेकिन मैसेज क्या दे रहा है, मेरा घर, पोजेशन, मलकियत दिखा रहा है, मलकियत शो कर रहा है। माई का लफ्ज़ मलकियत शो कर रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव्स है। आगे चले बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। टू शो दैट द पर्सन और थिंग्स आर काउंटेड कलेक्टिवली। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। टू शो दैट द पर्सन्स और थिंग्स आर काउंटेड कलेक्टिवली, नॉर्मली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स, रेफर टू members of a group as individuals. Example, each, every, either and neither. ठीक है बेटा, अब जो है ये ज़्यादातर जो है सिंगुलर के तौर पे, सिंगुलर नाउन्स के साथ इस्तेमाल होता है, और ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब तकसीमी लिहाज से जो है ना चीज़ों को बयान करते हैं। मसलन ईच पार्टिसिपेंट वाज टू कंप्लीट अ सर्वे, ईच, हर,
हर पार्टिसिपेंट हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास नाउन है। ईच पार्टिसिपेंट, हर पार्टिसिपेंट वाज आस्क्ड टू कंप्लीट अ सर्वे, हर जो है ना शिरकत कुनिंदे को एक सर्वे मुकम्मल करने के लिए कहा गया। आइदर ऑफ दीज मूवीज, ठीक है, आइदर ऑफ दीज मूवीज वुड बी इंटरेस्टिंग टू मी। अच्छा, अब यहाँ पे आइदर जो है वो किस चीज़ के मुतालिक इशारा कर रहा है, आइदर। आगे चलें, इसको देखते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स ये हो गया, और इसके बाद हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है कंपाउंड एडजेक्टिव। क्या है जी बेटा जी, हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव है। इसके बाद कंपाउंड एडजेक्टिव में क्या होता है, मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स, often linked together with hyphens to link the words together to show that it is one of the adjective. Example, lightweight, duty free, 4 foot, part time, कोल्ड ब्लडेड, वेल बिहेव्ड। अच्छा, अब दो से ज़्यादा लफ्ज़ से मिल के जो कंपाउंड बना हुआ जो हो ना, वैसे तो एक से ज़्यादा लफ्ज़ अगर उसके बीच में कंपाउंडिंग वाला वो नहीं है तो हम उसको फ्रेजल एडजेक्टिव भी बना लेते हैं, एडजेक्टिव फ्रेज भी बना लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बीच में ना ये हो कंपाउंड वाला ये निशान हो ना, बीच में हाइफन दिया हुआ हो, तो वहाँ पे हम मजबूर होते हैं क्या करने के लिए जी, इसको जो है ना, इसको हमने कंपाउंड एडजेक्टिव का नाम दिया होता है। मसलन वी हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स, वी हैव टू बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स। अच्छा, यहाँ पे ओपन माइंडेड क्या है जी, वो है एडजेक्टिव है, कौन सा, कंपाउंड एडजेक्टिव। द लेडी इज वेयरिंग अ पेयर ऑफ हाई हील्ड शूज। अब शूज यहाँ पे नाउन है और हाई हील्ड, ठीक है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, गो के ये क्वालिटी बयान कर रहा है हाई हील्ड, लेकिन कंपाउंड जो है ना, इसकी कंपोजिशन जो है वो कंपाउंड है। ठीक है जी, आगे चलें। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो है वो है कंपैरिजन। हम ऑब्जेक्टिव जो है ना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। कंपैरिजन हम ऑब्जेक्टिव्स का कैसे करते हैं, सो देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन कहते हैं मतलब है एक दूसरे के साथ मवादना। अच्छा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। एक चीज़ है नॉर्मल हालत के अंदर है तो हम उसको जो है ना मतलब है कि क्या कर देते हैं जी, मसलन असलम इज़ अ गुड बॉय, असलम इज़ अ गुड बॉय। तो गुड ने जो यहाँ पे जो है ना क्या किया है, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी है असलम के मुतालिक, तो ये पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ठीक है, इसी तरह मैं कहता हूँ जी असलम इज़ बेटर देन अख्तर, तो ये मैंने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर ली है, क्योंकि ये दो बंदों का कंपैरिजन आया है। एडजेक्टिव तो ये है ऑब्वियसली, लेकिन कौन सी डिग्री है, ये कंपैरेटिव डिग्री है। अच्छा, मैंने कहा कि असलम इज़ द बेस्ट इन हिज क्लास, असलम इज़ बेस्ट इन हिज क्लास, तो ये जो है ना क्या हो गया बेटा, सुपरलेटिव डिग्री बन गई है। तो ये जो है ना इस तरीके से ये काम करते हैं सारा निज़ाम। देखिए ना ज़रा दोबारा इसको, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अगली स्लाइड्स में जाके हम आपको मज़ीद भी जो है ना ये एक्सप्लेन करते हैं। मसलन अब देखिए हमारे पास पॉजिटिव डिग्री में है क्लीन। अच्छा, कोई चीज़ अगर साफ़ होती है तो हम उसके मुतालिक क्लीन है, क्लीन जग, जग हमारा पास नाउन हो गया, क्लीन हमारे पास उसका इसमें सिफत हो गया, क्लीन, क्लीनर, क्लीनेस्ट। ठीक है, डर्टी, डर्टियर, डर्टीएस्ट, क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। अच्छा, जो मतलब दो चीज़ों, दो देखो, एक तो ओवरऑल कोई सिफत बयान करनी है ना, वो तो पॉजिटिव में आ गई। जब दो चीज़ों के दरमियान मवादना करके कोई सिफत बयान करेंगे वो कंपैरेटिव डिग्री होगी। ठीक है, और किसी चीज़ को उस क्लास में सबसे, ठीक है, उस ग्रुप में सबसे ऊंचा दिखाना होगा या सबसे बढ़ा के बताना होगा, तो जो है ना उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे जी, सुपरलेटिव डिग्री करेंगे इस्तेमाल। इसी तरह सिंपल, सिंपलर, सिंपलेस्ट, नैरो, नैरोअर, नैरोइस्ट। समझ आ रही होगी उम्मीद है, इतना सिंपल तो समझा रहा हूँ। ठीक है बेटा, कंपैरिजन विद मोर और मोस्ट। अच्छा, अब ये तो एडजेक्टिव के अंदर एक और चीज़ आ जाती है, इसको ज़रा गौर से सुन ले।
सारे एडजेक्टिव ऐसे नहीं होंगे कि आप जैसे कहते हैं गुड, गुडर, गुडेस्ट। हमने बचपन में इस पे बड़े मजाक बनाए, गुड, गुडर, गुडेस्ट। तो हम इस तरह नहीं कर सकते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मतलब एक लफ्ज़ है हमारे पास ब्यूटीफुल है, हम इसको ये नहीं कर सकते ब्यूटीफुल और ब्यूटीफुलेस्ट। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे हमको जो है ना मतलब ये हटना पड़ता है, कंपैरिजन करना पड़ता है। किस तरीके से? मोर लगा के और मोस्ट लगा के। ठीक है, फ़र्ज़ किया हमारे पास एक लफ्ज़ है डिफ़िकल्ट, तो इसका कंपैरेटिव हम दो ऑब्जेक्ट के, दो नाउन्स के दरमियान जब कंपैरिजन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे मोर डिफ़िकल्ट। और अगर सबसे मुश्किल कोई चीज़ हमारे पास आएगी तो फिर हम उसके साथ क्या लगाएंगे? दी मोस्ट डिफ़िकल्ट। दी क्यों लगाएंगे? आर्टिकल का एक रूल है, वो जब हम आर्टिकल में जाएंगे तो उस पर आप पढ़ोगे कि सुपरलेटिव जब भी लगाई जाएगी डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा मेरे बच्चों आर्टिकल लगेगा। आर्टिकल भी कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। ब्यूटीफुल है, इसी तरह हमारे पास ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल इसके साथ लगेगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हमारे पास ये है ना, गुड, बेटर, बेस्ट, हाँ, और बैड, वर्स, वर्स्ट, एंड मच, मोर, मोस्ट, मैनी, मोर, मोस्ट, और लिटल, लेस, लीस्ट। तो ये क्या है? इर्रेगुलर एडजेक्टिव्स हैं। लिटल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अच्छा, ये अनकाउंटेबल्स नाउन होते हैं और काउंटेबल नाउन्स के अंदर। अच्छा, ये मच, मोर और मोस्ट, मच, मोर और मोस्ट, ये जो हम लगाते हैं ना जी, ये हम अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं, जबकि मैनी, मोर और मोस्ट ये काउंटेबल में। तो आप पॉजिटिव में याद रखें कि जब भी आपने अनकाउंटेबल नाउन में पॉजिटिव जो है ना मतलब है कि तादाद के अंदर अगर आपने एडजेक्टिव लगाना है तो आप मच लगाएंगे। ठीक है, और उसकी तरह मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री में मोर और मोस्ट आता रहेगा। अच्छा, इसी तरह अगर आप किसी काउंटेबल नाउन को डील कर रहे हैं तो फिर आप मैनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे पॉजिटिव डिग्री के अंदर, बाकी तो जो है वो सेम रहेगा। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे देखते हैं। अच्छा, स्पेशल एडजेक्टिव्स क्या होते हैं जी? कौन से होते हैं जी स्पेशल एडजेक्टिव्स? ये कौन से होते हैं? सम एडजेक्टिव हैव टू पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ कंपैरिजन, जैसे ER भी हो सकती हैं और EST भी हो सकती हैं, एंड मोर और मोस्ट भी हो सकते हैं। मसलन एक लफ्ज़ है हमारे पास क्लेवर, वो क्लेवरर भी हो सकता है कंपैरेटिव में, और मोर क्लेवर भी हो सकता है, क्लेवरिस्ट भी हो सकता है, और मोस्ट क्लेवर भी हो सकता है। तो ये स्पेशल एडजेक्टिव्स होते हैं। कॉमन, कॉमनर भी हो सकता है, मोर कॉमन भी हो सकता है, कॉमनिस्ट भी हो सकता है, मोस्ट कॉमनिस्ट भी हो सकता है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बता रहा हूँ। लाइकली, लाइकलियर भी हो सकता है, मोर लाइकली भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हमने चूँकि हम ब्रिटन इंग्लिश यूज़ ज़्यादा करते हैं तो मोर लाइकली हमने जो है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल किया है। अच्छा, पोलाइट, पोलाइटर, मोर पोलाइट, पोलाइटेस्ट, मोस्ट पोलाइट, ये दोनों जो है ना मतलब आप ये सिर्फ ध्यान में रखें कि स्पेशल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो दोनों किस्म के ER वाले और EST वाले और मोर और मोस्ट वाले दोनों किस्म के जो है ना मतलब है कि वो अपनी सुपरलेटिव डिग्री वगैरह को जो है ना मतलब लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के लिए दोनों शक्लें इस्तेमाल कर सकते। ठीक है जी। चलें जी, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है डियर स्टूडेंट। इंशाअल्लाह नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल है बेटा, काम करें, काम से नाम होगा। आज काम कर लो, कल तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम।